Okay. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and esteemed participants, a warm welcome to today's Monday Manthan webinar on income tax notices and its reply. Organized by CASA. This notices, rectification procedures, and handling of penalty notices. We have with us experts and professionals who will share their expertise and insights, providing you with valuable information that can shape your understanding in these areas. Preparing to expand your knowledge and engage in stimulating discussions throughout this enlightening webinar. Towards the end of the session, we will be hosting a question and answer session, providing you with the opportunity topics to address your queries and share their insights. So please, you are encouraged to post your queries in the chat box. I am CA Ritu Gupta, your moderator for the day. I would like to begin this session by apprising you about CASA. It is an association formed to provide learning platform for practicing professionals and students since 2010. We aim to enlighten you through our Knowledge Pack series, and today's webinar is one such part of the Monday Manthan series. The founder of CASA, CA Sumit Garg, is also with us today. The program for this evening will be as follows. We have a session of 1.5 hours on income tax notices and rectification procedures. May I begin the session by inviting CA Sachin Sinha, our keynote speaker for the session. He is a fellow member of ICAI, having 18 years of experience in income tax, and he is a regular speaker on various platforms, including that of ICAI. Over to you, Sachin, sir. Sir, please unmute yourself. 1 second, ma'am. 1 second. सर यू आर ऑन अ म्यूट मोड. एक सेकंड सचिन जी, आपने आई थिंक 2 जगह से ज्वाइन किए. अब अनम्यूट कीजिए. Hello, am I audible? यस, परफेक्ट. यस सर. Thank you so much. So sorry for delay. So sorry. Actually, I was stuck somewhere in another session. Not an issue, sir. You can start. So first of all, I would like to thank Sumit ji for giving me this opportunity once again on this CASA platform, because I always believe that CASA का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा ही प्लेटफॉर्म है, और हमें जब भी कुछ डिस्कस करना होता है तो हम CASA के प्लेटफॉर्म पे आके इसको डिस्कस करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टॉपिक है आज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में, कि जितने भी ऑर्डर आपके पास 31 मार्च तक आए हैं, ऑफ कोर्स आपके पास अपील फाइलिंग का डेट 30 अप्रैल तक था और आप सब ने उसको कर लिया होगा. ऑल्दो थोड़ा हम लोग लेट हैं, टेक्निकली 1 वीक अगर देखा जाए तो हम लोग लेट हैं, लेकिन कंटेक्स्ट हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे. शायद किन्हीं का फाइलिंग रह गया हो या कुछ और इश्यूज हो तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. और अगर मैं कहीं पे भी गलती करूंगा तो हमारे साथ हमारे गुरुजी CM जैन साहब हैं, तो ही विल टेक केयर फॉर एवरीथिंग. So thank you, Ritu ma'am, for introducing and setting the tone for this session. Thank you. And thank you, CM Jan sir, for being with us and for this session, sir. सचिन भाई नहीं है, हम कॉलेजियस हैं. सर हमारे लिए तो आप गुरु ही हैं. अरे नहीं नहीं नहीं. Okay, so टॉपिक पे सीधा आते हैं, क्योंकि सभी के पास मोरलेस असेसमेंट नोटिस, जिनका भी असेसमेंट हो गया उनके पास असेसमेंट ऑर्डर आए.
जब फिजिकल असेसमेंट होते थे तो चीजें थोड़ा आसान थी, क्योंकि हम उनको जाके चीजें एक्सप्लेन करते थे और कई बार वो हमारी बात समझ भी जाते थे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, फेसलेस है। और फेसलेस में अपनी बात को रखना, और वो भी सिर्फ डॉक्यूमेंट के थ्रू रखना, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो आप सबमिशन दे रहे हैं, उसमें वो सारा कवरेज होना चाहिए। और हमेशा, और इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट डिपार्टमेंट को मिलता है। सो अगर उनका डाउट होगा तो उनको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मली बेनिफिट, अगर डाउट, अगर उनको डाउट है तो वो कहते हैं चलो एसएससी शायद ठीक ही बोल रहा होगा, मुझे समझ में कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, वो कहते हैं एसएससी हमें समझा नहीं पा रहा, इसीलिए हमने उसको डिसअलाउ कर दिया, हमने उसका एडिशन कर दिया। अब समझ में आपको नहीं आ रहा है, एडिशन मेरा कर रहे हो। आप बोलोगे आपको बोलने का मौका दिया गया, आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, आप सबके पास भी नोटिस आए होंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नाउ ए फॉर्मेलिटी। उसके पहले वो सब कुछ रेडी करके रखते हैं और आपको देते हैं, आपकी 7 दिन के अंदर आप रिस्पॉन्स रिप्लाई कीजिए। और वो 7 दिन में आपका सर संडे मंडे, संडे और नॉन वर्किंग डे सब इंक्लूड है, चाहे वो होली हो या हॉलीडे हो, सब कवर्ड है उसमें। और उन्होंने उसको कवर करके 7 दिन का आपको टाइम दिया, क्योंकि स्टैच्यूट से 7 दिन का टाइम मिला हुआ है। वो कहते हैं इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं आपको, और आप उसके चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने 7 दिन का टाइम दिया। आपके पास एक ऑप्शन होता है सर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला रिप्लाई करने का, बट वो उसको सुनते नहीं है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मांग लूँ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको कब मांगना है? नॉर्मली असेसमेंट के ड्यूरेशन, आपको ड्यूरिंग द असेसमेंट ही आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मांगना है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो है, आज की डेट में मैंने देखा 3-4 केसेस में हमने मांगा था, वो भी एक फॉर्मेलिटी है। पहले तो वो टेस्टिंग चलता रहेगा कि आप मुझे, आप क्या बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा, फिर आप हेलो सर करते रहोगे, और फिर बाद में ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी वो शट डाउन कर देंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, खत्म। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन वो आप उसको अवेल नहीं कर पाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीजें हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक डिस्कशन है, रिप्लाई ऑफ डिमांड नोटिस। क्योंकि आपके पास अगर असेसमेंट हुआ है तो डिमांड नोटिस डेफिनेटली आया होगा, अगर असेसमेंट आपका एडिशन के साथ हुआ है तो। फाइलिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन, आपके पास ऑप्शन आते हैं। मेरा रिटर्न तो, मेरा असेसमेंट तो हो गया, अब मैं इसका रेक्टिफिकेशन फाइल कर दूं। सचिन जी, एक चीज और अपडेट करूं हाँ सर। कि नया अपडेट है कि मैंने 31 मार्च पे कई सारे 148 के केसेस अटेंड किए। तो हम्म उसमें पर्सनल हियरिंग ली और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई। तो उन्होंने वीडियो बना के भेजे हुए हैं क्लाइंट्स को मेल पे। हम्म। वीडियो बना के इंटरेस्टिंग। भेजे हैं। हाँ, वीडियो भी भेजे हैं। उसमें हेलो भी हेलो आती रहती है केवल। हाँ, ये सर, ये हम लोगों ने भी अपने एंड पे किया था, क्योंकि ये 1-2 केसेस में जो हमारे साथ हो गया, तो हमने इसका रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। रिकॉर्डिंग करके हम ये असेसमेंट ऑफिसर को दिखा सकते हैं, असेसमेंट के टाइम, सॉरी सीआईटी अपील को, कि सर जब हमारे को अपॉर्चुनिटी दिया गया तो उसमें कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं। सो मैं यहाँ से हेलो हेलो बोल रहा हूँ, वो भी हेलो हेलो बोल रहे हैं, तो पर कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं। जब कम्युनिकेशन हुआ नहीं तो इसका पर्पस ही डिफीट हो गया। सो मुझे दोबारा मौका मिलना चाहिए। सो ये आपके ग्राउंड ऑफ अपील में आएगा, इसलिए आप ये सब डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रिटेन करके रखिए। सो डिमांड नोटिस, अगर आपके पास असेसमेंट हुआ है तो 156 का आपका ऑटोमेटिक डिमांड नोटिस आ जाता है। रेक्टिफिकेशन और फाइलिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन, क्या मैं 156 के डिमांड नोटिस का रेक्टिफिकेशन फाइल करूं, या असेसमेंट ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन फाइल करूं, या दो सेपरेट चीजें हैं, दोनों का अलग अलग फाइल करूं? दोनों एक ही साल से संबंधित है, मुझे दोनों में रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकता हूँ क्या? या मैं एक ही टाइम पे क्या अपील फाइल कर सकता हूँ और रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकता हूँ क्या? हैंडलिंग ऑफ पेनल्टी नोटिस, क्योंकि अभी इनके पास क्या है, ये नोटिस जैसे आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है विद इन 30 डेज आपको एक पेनल्टी का नोटिस साथ, बल्कि साथ साथ में ही आपको साथ में दे देते हैं कि आपका 274 में क्यों नहीं आपका पेनल्टी लगा दिया जाए। ड्राफ्टिंग ऑफ एंड फाइलिंग ऑफ अपील अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग का जो टॉपिक है आज का, ये 5-6 चीजों में बटा हुआ है, और हम लोग हर एक चीज को एकदम रिलीजियसली डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग का कोई क्वेरी हो तो हम लोग साथ साथ में वो क्वेरी को भी लेते जाएंगे। सचिन जी, एक और है कि 156 असेसमेंट ऑर्डर के साथ आया ही नहीं है। हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे सर। सो टॉपिक आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं, विच आर द अपीलेबल ऑर्डर बिफोर द सीआईटी अपील। क्योंकि आपके पास 143(1) का भी आपके पास इंटीमेशन आता है, क्या मैं उसका भी अपील फाइल कर सकता हूँ? सो टेक्निकली स्पीकिंग आप बोले यस कर सकते हैं। सो वो चीज भी हम लोग को समझना है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर नहीं है। तो टेक्निकली सीआईटी अपील में आता है असेसमेंट ऑर्डर के पास,
क्या CI जो इंटीमेशन है वो असेसमेंट ऑर्डर है? वो असेसमेंट है ही नहीं, दैट इज नॉट एन असेसमेंट, दैट इज एन इंटीमेशन, प्रोसेस कर दिया और निकाल दिया। सो जैसा CM जैन सर ने बताया अभी कि 156 का जरूरी है नोटिस आना, आपका रेगुलर असेसमेंट हो रहा है 143(3) में, 147 में रीअसेसमेंट हो रहा है, तो आपके पास 156 का डिमांड आएगा। 143(1) में भी आपका हुआ तो क्या सेपरेट डिमांड नोटिस 156 में आएगा? बोले 156 में डिमांड नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कवर करता है, एक्सप्लेनेशन जो डिमांड 156 है वो कवर कर रहा है इसको, बोलता है इसमें नहीं आएगा। व्हाट इज द टाइम लाइन फॉर फाइलिंग एन अपील? कितने दिन के अंदर मुझे अपील फाइल कर देना चाहिए? हम लोग हमेशा जानते हैं 30 दिन के अंदर करना है। वो 30 दिन मेरा कहां से स्टार्ट होगा? विच फॉर्म एंड विच आर द इनक्लोजर्स टू बी फाइल्ड इन एन अपील? कौन से इनक्लोजर्स हमें लगाने हैं, क्या क्या लगाना है, क्या क्या नहीं लगाना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। हाउ टू ड्राफ्ट द फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोसेस का। अगर आपने अपनी बात सही से रख दी तो आपका काम हो जाएगा, अगर आपने अपनी बात सही से नहीं रखी तो काम नहीं होगा, चाहे कितना भी इजी केस हो। चाहे आपको केस सुन के लग रहा होगा ऐसा ये तो हो जाएगा, बहुत सारे जजमेंट हैं जो SSC के फेवर में है। आप भी ड्राफ्टिंग कर दी और आपने फाइल कर दी, पता चला आपने वो पॉइंट्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर तो आपका केस देखेगा, वो तो ये नहीं देखेगा कि ये तो सिमिलर मैटर है जो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, वो तो आपका केस देखेगा। SSC ने उस चीज को प्ली नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, खत्म। क्या मुझे प्रेयर भी साथ में लगाना चाहिए? यस, प्रेयर भी साथ में लगाना चाहिए। हाउ टू रिप्लाई द डिमांड नोटिस, मुझे डिमांड नोटिस आ गया 156 का, क्या मैं उसका मुझे पेमेंट करना है, या मैं अगर अपील में चला जाता हूं तो क्या डिमांड ऑल अपने आप ही कैप्टन एबियंस चला जाएगा? क्या मुझे 156 का सेपरेटली रिप्लाई करना है? 156 का क्या मैं रेक्टिफिकेशन अंडर 154 कर सकता हूं? बिकॉज 156 इज नॉट एन ऑर्डर पर से, इट्स नोटिस, इट्स नॉट एन ऑर्डर। जबकि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर का होता है, तो क्या मैं 156 का भी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकता हूँ? कंप्यूटेशन का कर सकते हैं। एक 156 के साथ कंप्यूटेशन भी साथ में आता है, तो आप उसका कर सकते हैं। व्हाट इफ द कंप्यूटेशन में जो फिगर आ रहा है और जो 156 डिमांड में जो फिगर, दोनों में डिफरेंस है, तो क्या करेंगे? ऐसा हो रहा है सर, बहुत सारे केसेस में है जहां पे कि कंप्यूटेशन में आपका एक्स अमाउंट आ रहा है और 156 के जो डिमांड नोटिस आया उसमें वाई अमाउंट आ रहा है। हाउ टू फाइल रेक्टिफिकेशन इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द ऑर्डर में मिस्टेक है। हाउ टू प्रिपेयर रिप्लाई फॉर पेनल्टी नोटिस एंड हाउ टू रिप्लाई द शो कॉज नोटिस ऑफ पेनल्टी। सो ये बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोग कवर करेंगे। अगर इसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे लास्ट स्लाइड में। सो अपीलेबल ऑर्डर, अगर मैं लाइन बाय लाइन सेक्शन को नहीं देखूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी आपके पास है, हम लोग वो चीज को कवर करेंगे जो जनरली एप्लीकेबल होता है हमारे पास। सो असेसमेंट ऑर्डर, रीअसेसमेंट ऑर्डर, कंप्यूटेशन, यस दैट इज अपीलेबल। जो 147 का ऑर्डर है वो अपीलेबल है। 153 कैपिटल ए का भी ऑर्डर है, वो भी अपीलेबल है। 154 का रेक्टिफिकेशन आपने फाइल किया और वो रिजेक्ट हो गया, क्या मैं इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता हूँ? यस, इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता हूँ अगर आप अग्रीव्ड हैं तो। 201, अगर मैं TDS में मैंने डिफॉल्ट किया और उसके लिए मैंने करेक्शन स्टेटमेंट फाइल किया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ उसका, या TDS का जो असेसमेंट हुआ उसमें जो उन्होंने मांगा और मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। पेनल्टी पेएबल व्हेन द टैक्स इज इन डिफॉल्ट। अगर आपको पेनल्टी का नोटिस आया, ऑर्डर आ गया, तो क्या पेनल्टी का ऑर्डर को मैं चैलेंज कर सकता हूँ? कर सकते हैं। क्या मैं असेसमेंट ऑर्डर को मैंने चैलेंज नहीं किया लेकिन मैं पेनल्टी ऑर्डर को चैलेंज कर सकता हूँ? कर सकते हैं। बिकॉज ये सारा सेपरेट कॉन्सिक्वेंसेस, सेपरेट इफेक्ट है। आप बोलेंगे पेनल्टी तो उसी के कारण लगा जो मेरा डिसअलाउ हुआ था, तो मैंने जो क्वांटम को चैलेंज नहीं किया तो मैं पेनल्टी को कैसे चैलेंज कर सकता हूँ? ये पॉइंट आएगा, ये डिपार्टमेंट भी उठाएगा ये पॉइंट, बट आपको टेक्निकल ग्राउंड पे अपने आप को निकालना है। क्योंकि आप अगर जाएंगे कि मेरा क्वांटम तो बनता था लेकिन मेरा पेनल्टी नहीं लगाया जाए, मैं वो अपील से प्रे कर रहा हूँ, डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, वो नहीं मानेंगे उसको। बट आप टेक्निकल ग्राउंड पे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर। टाइमलाइन फॉर फाइलिंग एन अपील, कब तक मुझे फाइल करना है? सो स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड हम लोग हमेशा मानते हैं विद इन 30 डेज। वो 30 डेज कहां से स्टार्ट होगा? सो वेयर द अपील रिलेटेड टू एनी असेसमेंट और पेनल्टी, द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड।
डिमांड नोटिस सर्व होना चाहिए टू द असेसमेंट और रीअसेसमेंट। असेसमेंट ऑर्डर का डेट और डिमांड नोटिस का डेट, डिमांड नोटिस का डेट अगर अलग अलग है तो डिमांड नोटिस का डेट से मेरा काउंट होगा। in any other case, the demand on which intimation of the order is sought to be appealed against is served. So in any other case, अगर मेरा जो इंटीमेशन मुझे मिला है जिसके अगेंस्ट में, जैसे कि 143(1) है या 201 है, अगर वो केसेस हैं तो आपका उस डेट से, अदरवाइज क्योंकि इनमें डिमांड नोटिस सेपरेटली नहीं आता, इसीलिए वो उसके लिए वो डेट अप्लीकेबल होगा। और इन केसेस में जो ऊपर वाले केसेस है उनमें डिमांड नोट, क्योंकि आप डिमांड के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हैं। सो वेयर द अपील रिलेटेड टू एनी असेसमेंट और पेनल्टी, द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड। सो जो जैन साहब का जो क्वेश्चन था कि अगर डिमांड नोटिस नहीं आया तो क्या करेंगे? डिमांड नोटिस नहीं आया, असेसमेंट हो गया, डिमांड नोटिस नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपील फाइल कर सकता हूँ? किसके अगेंस्ट में अपील फाइल करेंगे? वो बोले मैं तो आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। जब आप मांग नहीं रहा हूँ, मैं अग्रीव्ड भी नहीं हूँ। जब आप मांगोगे तो मेरा एग्रीवेशन शुरू होगा, तो मैं वहां से अग्रीव्ड काउंट होगा, फिर मैं वहां से 30 डेज मुझे टाइम मिलेगा फाइल करने के लिए। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जैन साहब ने एकदम स्टार्टिंग में ही उठाया कि आपको अगर डिमांड नोटिस नहीं आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कितना फीस पे करना है? हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, पेनल्टी है 1000 रुपीज लगेगा। क्या 1000 रुपये फिक्स है? तो 1000 रुपये फिक्स नहीं है। अगर वेदर टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज लेस देन 1 लाख 250 रुपीज, आप बोलेंगे 1 लाख से जिसका कम वो फाइल ही कौन करता है? 2 लाख तक 500, उसके ऊपर 1000। सो लॉ में प्रोविजन दिए हुए हैं। अभी आप स्टैंडर्ड 1000 रुपीज का बना लेते हैं। क्या क्या इनक्लोज करना है, यहां से चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। अपील फाइल करने का तैयारी आपको, जैसे आपको ऑर्डर मिला है इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का है। उसमें आपके सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे में काउंट हो जाते हैं, तो आपके पास 22 डेज इफेक्टिवली बचते हैं। उसमें भी आपका क्लाइंट अवेलेबल नहीं होगा, 30-40% टाइम वो क्लाइंट अवेलेबल नहीं होगा। बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो सीरियस होते हैं अपने ऑर्डर को लेकर। पहले तो वो आपसे झगड़ा करना शुरू करेगा, आ कैसे गया ये, आपने ठीक से फाइट नहीं किया होगा। वो ये मानेगा कि आप ही इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार आप ही हैं। तो उसको समझाने में आपके 2-4-5 दिन तो निकल जाएंगे। उसके बाद आप हमसे डॉक्यूमेंट मांगे, क्योंकि अगर वही डॉक्यूमेंट जो आपने असेसमेंट में लगाया है अगर वही सफिशिएंट होता तो काम ही हो जाता। फिर तो इसका मतलब दैट इज नॉट सफिशिएंट, आपको कुछ ना कुछ एडिशनल चाहिए। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट आपको वो चाहिए होगा। तो तैयारी शुरू से शुरू कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। फॉर्म 35 फाइल करना है, ऑनलाइन फाइलिंग है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट साथ में लगेगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में लोग जनरली क्या करते हैं, जजमेंट डालना शुरू कर देते हैं, मत डालिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज वेरी सिंपल ऐसे, और पूरा इसमें बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड भी लिखने का जरूरत नहीं है। केस स्टार्ट कीजिए एसएससी का बैकग्राउंड से। एसएससी क्या है, उस क्या करता है, उसको ये नोटिस मिला और वहां से हमने मैंने ये रिप्लाई किया, फिर उसका ये हुआ, हमने ये डॉक्यूमेंट मांग दिया, सो कॉज आया, सो कॉज नहीं आया, सो कॉज आया पर मुझे रीजनेबल टाइम नहीं मिला। जो भी आपका पॉइंट है उसको आप पहले फैक्ट को पूरा अच्छे से डालिए उसमें, क्योंकि पूरा फैक्ट ही, अगर आप यहाँ पे फैक्ट डालने में मिस कर गए तो आगे आपको दिक्कत आएगी। अब ऐसा नहीं कि आप बाद में दूसरे अथॉरिटी के सामने उसको ऐड नहीं कर सकते, आप दूसरे अथॉरिटी के सामने उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि आपका एसएससी क्या आपका वहां तक सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। सो इट इज ऑलवेज बेटर पूरा फैक्ट को अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद आता है ग्राउंड ऑफ अपील। ग्राउंड ऑफ अपील में आप किस ग्राउंड, क्या पॉइंट है आपका अपील करने का, उसको लेके आइए। मैं क्यों अपील करना चाहता हूं, तो आप अग्रीव्ड हैं, क्या अग्रीव हुआ आपका, क्या आप कैसे अग्रीव हो गए, वो क्या पॉइंट है वो डालना है आपको। अगर आपने वो सही से डाला तो आपका ग्राउंड कवर होगा। मैं फिर बोलूंगा, यहां तक जजमेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, अनलेस यू आर, आपका कोई केस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड है तो आप डाल दीजिए, या जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट ने उसको कवर किया है तो आप सपोर्ट के लिए डाल सकते हैं। सीआईटी अपील इज ऑल्सो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, और उसके पास जो कॉसाई जुरिडिकल अथॉरिटी होता है। सो आप अगर, तो वो असेसिंग ऑफिसर की तरह भी काम कर सकता है। जब असेसिंग ऑफिसर की तरह काम कर सकता है तो पूरा फैक्ट उसके सामने रखिए
और आपको वो सारी बातें रखनी है जो आप ईओ के सामने रखना चाहिए था लेकिन आप मिस कर गए, या आपने रखा था लेकिन उसने सुना नहीं। तो वो सब चीज को आपको लेके आना है। प्रेयर जरूर डालिए। मैं क्या प्रे कर रहा हूं आपसे, सेट असाइड द असेसमेंट, और सेट असाइड कर दीजिए, मुझे ये रिलीफ दीजिए, मेरा रिड्यूस करिए। क्योंकि लिमिटेड पावर दिया गया है सीआईटी अपील को, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका लिमिटेड पावर दिया गया। तो आपको ये देखना है कि मैं जो उससे मांग रहा हूँ वो उसके दायरे में आता है कि नहीं आता है। और आप उसको रिमांड बैक करने के लिए मत बोलिए कि आप मेरा रिमांड बैक कर दीजिए, बिकॉज ही कैन ऑल्सो एक्सेस। तो आपके पास, आपको वो नहीं करना है कि आप उसको रिमांड बैक कर दीजिए। अगर उसको लगता है कि कोई नया चीज आया तो वो खुद करेगा। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे प्रे क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड ये साथ में लगाइए। आप बोलेंगे स्टे ऑफ डिमांड का यहाँ पे क्या जरूरत है, स्टे ऑफ डिमांड तो हम वैसे भी फाइल करेंगे। जब आप वहां पे फाइल करेंगे सीआई असेसिंग ऑफिसर के पास, तो आप फिर उसी जगह पे आ गए जहां की आप पहले खड़े थे, और वो आपकी बात को कितना सुनेगा, कितना, और उसको पता है कि ये केस में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो कभी नहीं मानेगा कि ये केस में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, इसीलिए मैं आपका स्टे कर दे रहा हूँ। ऑटोमेटिक स्टे नहीं है कि मैंने अपील फाइल कर दिया मुझे स्टे मिल गया, ऐसा नहीं होता। आपको स्टे का एप्लीकेशन सेपरेटली फाइल करना पड़ेगा। सीआईटी अपील के पास ये पावर होता है स्टे करने का, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो आपको स्टे नहीं देगा। और यहाँ पे 30 डेज का टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, और डिपार्टमेंट आपके पास एक लेटर भेज चुका होगा कि आप 156 का डिमांड जमा कराइए, रिमाइंडर शुरू हो जाएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं विद इन 30 डेज यहाँ पे भी डिपॉजिट कर, डिपॉजिट तो आप करेंगे नहीं पूरा, तो आपके पास एक सर्कुलर है, उसका रेफरेंस देके 20% के लिए वो बोलेंगे आपको, आप 20% जमा करा दीजिए, हम आपको स्टे दे देंगे। पर वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा? क्या अनलिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है? नहीं। उसका बिल पीरियड अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या मुझे दोबारा स्टे के लिए जाना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन को अपना रिन्यूअल कराना पड़ेगा, सो दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन आप साथ में कह सकते हैं, आपको ये भी एश्योरेंस देना पड़ेगा कि मैं केस को जल्दी क्लोज करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अगर मुझे आज सीआईटी अपील को नोटिस देता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो मैं वो भी कर दूंगा। सॉरी, आई थिंक अब थोड़ा दिखने में ठीक हो रहा होगा ना? सॉरी, मुझे पता नहीं चला Yes, कि। sir. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की कॉपी आपको साथ में लगानी है, एंड दैट इज टू बी साइंड होना चाहिए वो भी। प्रूफ ऑफ फीस पेड, जो हमने ऊपर फीस का डिस्कशन किया, कि वो फीस का प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा कि हमने ये फीस पे किया हुआ, तो चालान की कॉपी साथ में जाएगी। एविडेंस टू सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, आपने जो भी फैक्ट्स लिए हैं अपने केस में, वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। कि अगर उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई पॉइंट है आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको भी लगाइए। एविडेंस टू सब्सटैंशिएट द ग्राउंड ऑफ अपील, जैसा आपने बोला कि कोई कोई जजमेंट है या कोई रेफरेंस है, कोई नोटिफिकेशन है, तो आप वो भी साथ में लगाइए कि भाई मेरा ग्राउंड, मैं इसको भी पार्ट बना रहा हूँ। अथॉरिटी लेटर या वकालतनामा, जो भी हम अथॉरिटी लेटर होता है, ये भी मुझे साथ में लगाना है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट सुनने में छोटा लग रहा है, पर ये और भी बड़ा हो सकता है। ये आपको जो लग रहा है कि ये तो मुझे देना ही चाहिए, इसको बल्कि मत बनाइए। कई लोगों का ऐसा व्यू होता है, जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट देंगे उतना ज्यादा मेरा केस पॉजिटिव होने का चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ग्राउंड्स कितना इंपॉर्टेंट लिया हुआ है, और आपने अपना फैक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ग्राउंड आपका एकदम क्रिस्प होना चाहिए, क्या पॉइंट मेरा ग्राउंड में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और वो बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगला ग्राउंड में 2 ग्राउंड है या 5 ग्राउंड है, तो उसको हर एक को अलग अलग पैराग्राफ में लिखिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपका जो 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 फॉन्ट हो, टाइप हो, वो एरियल हो, और 14 का साइज होना चाहिए, डबल स्पेसिंग का होना, डबल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड जो डिपार्टमेंट में और या आईटीआईटी में चलता है, ये वो मैं आपको दे रहा हूँ। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन, अगर आपने टाइम से नहीं फाइल किया, जैसे आज हम लोग 7 तारीख पे खड़े, 6 तारीख पे खड़े हैं,
अभी आपका डिले हो गया, 30th के पहले आपको फाइल करना था, आप नहीं कर पाए, अब 7 दिन डिले हो गया, डिपार्टमेंट 7 दिन 15 दिन को मानता है, चल ठीक है, आप एटलीस्ट रीजनेबल टाइम के अंदर आ गए। लेकिन अगर आपका 1 महीना डिले हो गया, 6 महीना डिले हो गया, 1 साल डिले हो गया, ऐसा भी केस आपके साथ आ सकता है, तो आपको सीओडी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी साथ में लगाना है। क्यों मैं लेट हो गया, और अगर मैंने सीओडी फाइल कर दिया, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, इट डजेंट मीन कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये भ्रम है कि हमने तो फाइल किया था, आपने माना नहीं, वो नहीं मान सकता है, क्योंकि सेक्शन ही ऐसा बोलता है, द सीआईटी अपील मे ग्रांट लेनियंसी, मे ग्रांट। तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपका ग्राउंड बहुत रीजनेबल है, तो वो मान सकता है। तो ग्राउंड रीजनेबल कैसे होगा, आपको इतना जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एसएससी ट्रेवल कर रहा था, आपने बोल दिया एसएससी ट्रेवल करता, बट कोई ट्रेवल का कोई प्रूफ नहीं लगाया, एसएससी इंडिया से बाहर था, लेकिन आपने कोई पासपोर्ट की कॉपी नहीं लगाई। एसएससी बीमार था, लेकिन आपने कोई मेडिकल इंक्लोजर्स नहीं लगाया। कैसे असेसिंग ऑफिसर इसको रिलाई करेगा, वो नहीं करेगा। तो आपको वो सब भी साथ में लगाना है कि मैं जो सीओडी दे रहा हूँ, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में फाइल कर रहा हूँ, उसके साथ भी मेरा डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज किया है, इसका मतलब ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है। और नॉर्मली मैं हर बार ये बोलता हूँ, आई थिंक सीएम जन सर्विस को एग्री करेंगे, अपील एक काम है, स्टे ऑफ डिमांड दूसरा काम है, सीओडी तीसरा काम है। हर एक चीज का बिलिंग अलग अलग कीजिए और क्लाइंट को बता के कीजिए। पेनल्टी अलग चलता है, अलग पेनल्टी का अपील अलग चलता है, सब रेक्टिफिकेशन अलग चलेगा। तो आपके पास ये अगर आप देखेंगे तो आपको देखना है कि मैं इनमें से किस कौन कौन सा मेरे में फॉल कर रहा है, उसमें टिक कीजिए और इन पांचों का क्लाइंट को बताइए मैं इस चीज का इतना इतना फीस ले रहा हूँ आपसे। अगर आपने इसको अपील समझ के एक नॉमिनल सा फीस चार्ज कर लिया, समझो आप अगर 1 लाख चार्ज कर रहे हो, 1 लाख, पता चला कि आप सीओडी का एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, उसमें ही सीआईटी अपील का 3 चक्कर लग गए आपके, चक्कर इन द सेंस 3 डेट की लग गई हियरिंग, आपका तो जो एफर्ट था वो उसी में अटक गया। उसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को इतना चीज नहीं पता है, वो बोलेगा जी मैंने आपको दे दिया, अब ये आपके लिए बंडल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको देखना है कि मेरे लिए बंडल कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, लेकिन मुझे हर एक चीज का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एज ए प्रोफेशनल हमें हर एक चीज का पैसा प्रॉपरली चार्ज करना चाहिए। और मैं हर बार बोलता हूँ, जितना भी मेरा सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, मैं हर बार पैसा पूरा चार्ज करूँ, नहीं तो ये चमक दमक कहाँ से लाएंगे, ऑफिस के खर्चे भी तो हैं। So the notion of condonation of delay encompasses the discretionary power of the CIT appeal. आप इसको मैंडेटरी नहीं बना सकते। हालांकि अभी रिसेंटली आपने केस देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि मैंने डिले किया और मुझे सीआईटी अपील ने अलाउ नहीं किया। कितना डिले किया, ज्यादा नहीं, 2000 दिन का डिले था। 2000 दिन का मतलब अंदाजा है कितने साल हो गए, उतने साल तक आप कहाँ थे। तो उसने बोला जी मेरा कोई कोई लॉजिकल आंसर नहीं था, आपको ये देना पड़ेगा, मतलब आपको लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा तभी वो मानेगा। एडिशनल एविडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे अपील प्रोसेस का। अगर एसएससी ने कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम पे नहीं दिया जो असेसमेंट में देना चाहिए था, मैं अब देना चाहता हूं अपील में, दे सकता हूं क्या? तो रूल बोलता है, रूल 46A बोलता है एडिशनल एविडेंस आप ले सकते हैं, एडिशनल एविडेंस आप ले सकते हैं। उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन दिया हुआ है, हर केस में वो नहीं एक्सेप्ट होगा आपका, आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने अपील में एडिशनल एविडेंस लिया है तो पहले एडिशनल एविडेंस का के ऊपर डिस्कशन होगा, तब मैटर आगे जाएगा। और अगर आपके केस में सीओडी है और एडिशनल एविडेंस है और फैक्ट्स ऑफ द केस है, तो पहले सीओडी डिस्पोज होगा, फिर एडिशनल एविडेंस डिस्पोज होगा, तब मैटर फैक्ट पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये सीक्वेंस है सर। सो एडिशनल एविडेंस के लिए रूल 46 क्या बोलता है, अपीलेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस बिफोर द सीआईटी अपील एनी एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंटरी अदर देन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट। जो आपने वहां पे दिया वही आप दे सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ असेसमेंट के टाइम पे आपको बहुत विजिलेंट रहना है, मैं क्या चीज नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं वहां नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ भी नहीं दे सकता। लेकिन उसका एक्सेप्शन इन्होंने दे दिया, वेयर द एओ हैज रिफ्यूज टू एडमिट, आप देने गए उसने लिया नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, आप फिर तो आपका पॉइंट वैलिड बनता है कि आप तो दे रहे थे उसने लिया नहीं। अब वो चीज खत्म हो गई, क्योंकि अब उसके लेने का ऑप्शन ही बंद हो गया, आपने तो ऑनलाइन सबमिट करना है, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, बट एटलीस्ट वो कंसिडर करे या नहीं करे, बट आपका चला तो गया। तो आप कह सकते हैं सर मैंने ये फाइल किया हुआ है, इसलिए ये मेरा अपील का भी पार्ट बनेगा। वेयर द अपीलेंट हैज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज
विच वॉज आस्क्ड बाय द एओ। एओ ने आपसे मांगा कि आप जीएसटी का पूरा डिटेल ले आइए। अब पता चला आपका जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका पूरा बुक्स को इम्पाउंड कर लिया, आपके अवेलेबल नहीं है देने के लिए, तो आप नहीं दे सकते। तो आपको बताना पड़ेगा कि उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा ये चीज हो गया था, अब मैं दे रहा हूं। तो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड है आपका देने के लिए। वेयर द अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज विच रिलेवेंट फॉर द ग्राउंड ऑफ अपील। उस समय एओ ने मांगा नहीं, मैंने भी दिया नहीं, अब मुझे लगता है कि ये जरूरी है। तो जब एओ सीआईटी अपील आपसे पूछेगा कि जब ये जरूरी था, एओ ने नहीं मांगा, तो आपने खुद क्यों नहीं दिया, तो आप बोलोगे साहब उस समय तो मेरे पास ये था ही नहीं। तो आपको एक सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं ला पाया हूं। हर एक वर्ड का मीनिंग है। प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज, आप प्रिवेंट, यू आर प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज, जो कि आपको लगता है कि ये तो अपील के लिए बहुत जरूरी है, तो ही एक्सेप्ट होगा। Where the AO has made the order without giving an opportunity to adduce evidence relevant to any ground of appeal. So AO ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं। सो ये पॉइंट पे पहले डिस्कशन होगा। अगर सीओडी नहीं है, एडिशनल एविडेंस है और फिर अपील है, तो पहले इस पे होगा। अगर सीआईटी अपील ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका केस आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक चैलेंज क्या आता है, सीआईटी अपील को आपने बोला मैं तो दे रहा था, बस एओ ने लिया नहीं उस समय, या मैं उस समय सफिशिएंट कॉज था मेरे पास। फिर एओ सीआईटी एओ को भी, सीआईटी अपील एओ को भी अपॉर्चुनिटी देगा कि या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर एओ अपना सबमिशन देगा। अगर एओ ने बोला कि हाँ ये डॉक्यूमेंट बहुत वैलिड है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे सीआईटी अपील का एक डिस्क्रिशनरी पावर चलेगा। इवन तो सीआईटी ने मना कर दिया, लेकिन अगर सीआईटी अपील को लगता है कि बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट असेसमेंट पर्पज, अपील पर्पज के लिए, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो कर सकता है। एडिशनल एविडेंस वर्सेस एडिशनल ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा एडिशनल एविडेंस और एडिशनल ग्राउंड में कंफ्यूज करते हैं। मैंने अपील फाइल कर दिया, डेट लग गया, अब मैं चाहता हूं कि मैं ग्राउंड को चेंज करूं, क्या मैं कर सकता हूं? मैंने उस समय 5 ग्राउंड लिया था, मैं 2 ग्राउंड और ऐड करना चाहता हूँ। उस समय जो मैंने 5 ग्राउंड लिया था, मैं 5 हटा रहा हूँ, मैं नया 5 ग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? कर सकते हैं। The CIT appeal may, at the hearing of an appeal, allow the appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal if the CIT appeal is satisfied that the omission of that ground from the form of appeal was not willful or unreasonable. अभी समझिए वो सिंपल चीज है। कोई क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उसका अपील बना के फाइल कर दिया, केस तो लगेगा 2 साल 3 साल 4 साल बाद, आप लोगों को पता है, अभी लग ही नहीं रहा। इन द मीन टाइम उसको लगा कि सचिन जी को कुछ नहीं आता है, मैं जैन साहब से केस कराऊंगा। वो जैन साहब के पास चले गया, जैन साहब ने बोला, फिर पूरा चेक किया, 35 स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील। जैन साहब ने बोला किससे बनवा के लाए हो यार, ये तो ग्राउंड ही उसने गलत ले लिया, ये सब ग्राउंड हटाओ, मैं नया ग्राउंड बनाऊंगा। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या एक्सेप्ट हो जाएगा? ये सीआईटी अपील के पास पावर है उसको एक्सेप्ट करने। सो बोथ एडिशनल एविडेंस एंड एडिशनल ग्राउंड, सीआईटी अपील के पास पावर है। अगर वो मना कर दे कि नहीं नहीं आप ये नहीं ले सकते, तो आप आगे जा सकते हैं, आप इसके लिए रिट भी फाइल कर सकते हैं कि मैं, आप मना कैसे कर सकते हो मेरा ये लेने से, बिकॉज आप सर, वो है ना, मेरा जो भी आजादी है मुझे ये अपनी बात रखने का, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए, और आप उस समय क्यों नहीं दे पाए उसका भी एक ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। सो ड्राफ्टिंग ऑफ फैक्ट्स एंड ऑफ द केस एंड द ग्राउंड्स ऑफ अपील, इसको मैंने एक साथ रखा है सो दैट कि जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन के दौरान उसको एलिब्रेट कर लेंगे। सो सबसे पहला आपको क्या करना है, जब हम लोग इसमें देखिए सर, ये यहाँ पे अब आप चाल चलना स्टार्ट कर रहे हैं। एओ ने आपने असेसमेंट करा लिया, आपने अपने सारे पत्ते उसके सामने रख दिए, असेसिंग ऑफिसर ने भी आपका असेसमेंट कर दिया, उसने जो वही पॉइंट्स लगाने थे लगा दिए, उसने भी अपने पत्ते सारे खोल दिए। नाउ अ फर्स्ट स्ट्राइक आपको करना है। ये जो फर्स्ट स्ट्राइकिंग है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले वो सब मिस्टेक को लेके आना है जो कि एओ ने किया है। कैपिटलाइज ऑन एरर्स कंटेन्ड इन द ऑर्डर, लाइक फेल्योर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग अथॉरिटी टू एंटर फाइंडिंग थ्रू टैक्स हैज बीन डिमांडेड। सो आपको ये पहला करना है, इसने ये गलती कर दिया, इसने ये गलती कर दिया, आपको ये लिखना है। कई लोग लिखने में भी बहुत हम्बल हो जाते हैं,
आप लर्नेड एओ लिखिए ईमानदारी से, उसमें कोई दो राय नहीं, दे आर लर्नेड, बट आप साथ में अपनी पूरी बात रखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि मुझे रखने से ऐसा कुछ नहीं कि वो नाराज हो जाएगा, जो होगा आप अपनी बात तो रखिए। तो आपको पूरा बात रखना है, और जहां भी उसकी कोई गलती है ऑर्डर के अंदर में, उसको आपको निकाल निकाल के बाहर लाना है। द ग्राउंड शुड सपोर्ट द फैक्ट्स नरेटेड, जैसा मैंने बताया फैक्ट आपका होना चाहिए। तो फैक्ट जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, ग्राउंड उसके साथ में आपका लिंक होना चाहिए। देयर शुड बी सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल लैंग्वेज अगर आप लिखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजों को, पता नहीं समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि उनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं दे अप्रिसिएट और नॉट, कई बार उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो आपको उनकी ईगो का भी ध्यान रखना है। सो है तो वही जो पहले हम लोग फिजिकल करते थे, तो आप कैसे हम्बल रिक्वेस्ट करते थे उनसे, चाहे आपका केस कितना भी पक्का हो, अभी भी करना वही है, सिर्फ पहले बोल के करते थे, अभी लिख के करना है। तो प्रेजेंटेशन भी वैसा होना चाहिए आपका। देयर शुड बी सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, शॉर्ट सेंटेंस, ब्रेविटी एंड कंसाइज फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। सो सेंटेंस को बहुत लंबा खींच रहे हैं, एक ही बात को बार बार लिख रहे हैं, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बल्कि इरिटेशन होगा पढ़ने वाले को। आपको वो सिंपल वर्ड में लिखना है। कोशिश कीजिए इस सेक्शन में ये चीज बोलता है, एओ ने ये चीज नहीं किया, खत्म, आपकी बात हो जाएगी। 40 A2A 40 A2B, फेयर एक्सेसिव एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल, एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल मतलब आपने एक्सेस किया, अनरीजनेबल किया, हाउ डू आई नो मैंने एक्सेस किया, हाउ असेसिंग ऑफिसर रिलाइड, कैसे रिलाई किया उन्होंने। आपको ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहां पे कि आप अपने पॉइंट को रख सकते हैं। सो बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में रखने हैं। अपील में भी ड्राफ्टेड विद एडिक्वेट लाइन स्पेसिंग, जो मैंने आपको बताया, डबल स्पेसिंग पे कीजिए इसको। द मेमोरेंडम शुड बी सेट फोर्थ द ग्राउंड कंसाइजली अंडर डिस्टिंक्ट हेड्स। अगर आप जो जो बोलना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट पहले में, दूसरा पॉइंट दूसरे, ये नहीं कि आधा उसमें बोले आधा इसमें बोले, फिर आधा नीचे वाले का भी आधा ऊपर वाले में बोल दिए, तो उससे ना पढ़ने वाले को फ्लो नहीं मिलेगा। और कोशिश कीजिए फ्लो में बनाने का, इसको सीक्वेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। डिस्टिंक्ट हेड्स कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड, ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, जो भी आपके पॉइंट्स हैं नंबरिंग भी प्रॉपर कीजिए, क्योंकि जब बाद में रेफरेंस में डिस्कशन होगा। सॉरी सर, मेरा सजेशन ये है कि स्टेटमेंट फैक्ट जो है डेट ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंगली हो तो बिल्कुल ज्यादा बेटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए अथॉरिटीज को, तो उससे क्लियर हो जाता है कि क्या है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल करेक्ट है, अग्रीड सर। सो द पेपर बुक शुड कंटेन एन इंडेक्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपका पेज नंबर्ड होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, आपका जो पॉइंट्स है वो नंबर होना चाहिए। जब डिस्कशन होगा ना, तो रेफर पेज नंबर दिस, पैरा दिस, तो वो कैसे रेफर करेगा, तो उसके पास रहेगा तभी तो रेफर करेगा। आपने इंडेक्स दिया हुआ है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, तो आप जैसे आप नॉर्मली, आप खुद देखिए, अगर आपको जो चीज करने में आसानी होगी आप वैसा प्रेजेंट कीजिए। दूसरा, आप जो भी एविडेंस लगा रहे हैं शुड बी लेजिबल, रीडेबल। कई बार क्लाइंट ने हमें दिया, वो प्रॉपर रीडेबल नहीं है, हमने एज इट इज चिपका दिया, आपने अपलोड कर दिया, अभी उस आपको भी पता है कि उसको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो क्या कैसे समझेगा। इसका मतलब आप चाह ही नहीं रहे हो कि आपका केस खत्म हो। अगर आप बोलोगे सर आया ही मेरे से ऐसा, तो उस क्लाइंट को बोलिए ना कि फ्रेश लेके आओ। हम क्लाइंट को बोलने में संकोच करते हैं, डिपार्टमेंट से लड़ना चाहते हैं, दोनों बहुत ही ऐसा सिचुएशन है जो मैच नहीं कर रहा है। आप क्लाइंट को बोलिए, अगर आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है क्लाइंट को बोलिए। और चूंकि फेसलेस है, इसलिए आपका पेज नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर पेज में हाईलाइट करते हैं, तो अपने सबमिशन में भी लिखिए कि मैंने इस पेज के इस अपने ग्राउंड के अटैचमेंट का इस पेज नंबर को रेफर करके ये वाला पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है, सो दैट कि असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाए। रिप्लाई ऑफ डिमांड नोटिस, आपके पास डिमांड नोटिस आया 156 का, सो जैसे सर ने बताया नहीं आया तो क्या, सो नहीं आया तो नो डिमांड नोटिस। बहुत सारे जजमेंट होते हैं, डिमांड नोटिस नहीं आया तो आपका असेसमेंट फेल हो गया, बिकॉज आप पैसा मांग नहीं रहे हो मेरे से, डिमांड नोटिस नहीं है, तो कैसे करेंगे। वेर एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और एनी अदर सम पेएबल इन कंसिक्वेंस, payable in consequence of any order passed under this act, the AO shall serve upon the SSE a notice of demand specified the sum so payable। आज की डेट में चूंकि ऑनलाइन है, इसको उठा के रख दो बाहर के। आज के डेट में चूंकि ऑनलाइन है, तो ये साथ साथ में आ जाता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है
कि डिमांड नोटिस पहले आ गया, असेसमेंट ऑर्डर बाद में आया। प्रैक्टिकली, टेक्निकली नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि डिमांड नोटिस पहले आ गया और असेसमेंट ऑर्डर बाद में आया। कैसे पता चलेगा? आया तो दोनों सेम डेट में है। टाइमिंग ऑफ साइनिंग देखिए, अगर डिमांड नोटिस पहले साइन हो गया और असेसमेंट ऑर्डर बाद में साइन हुआ, दैट डिमांड नोटिस इज इनवैलिड। आप, वो बेकार हो गया सर, बिकॉज यू कैन नॉट डिमांड विदाउट असेसमेंट। आप असेसमेंट बाद में कर रहे हो, डिमांड पहले कर रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? आप उसको चैलेंज कर दीजिए, आपका केस आप पहले ही जीत गए। और ये केसेस अभी हुए हैं, कुछ केसेस लोगों ने, मतलब मेरे जानकारी में भी आए, जब लोगों से बात हुई तो ये आपको ध्यान देना है कि टाइमिंग क्या है। व्हाट इफ द डिमांड अमाउंट इज नॉट करेक्ट? आपके डिमांड तो आ गया, असेसमेंट ऑर्डर हो गया, दैट इज ओके। अभी डिमांड नोटिस आया, असेसमेंट में बोलता है आपका सब क्लियर है, लेकिन डिमांड नोटिस में डिमांड आ गया। अभी क्या करेंगे? अपील फाइल करूं कि ना करूं? अपील फाइल करेंगे, बोले अग्रीव्ड पॉइंट क्या है आपका? अब अग्रीव्ड तो आप बोले वो डिमांड कर रहे हैं, किस ग्राउंड में डिमांड कर रहे हैं? आपका ग्राउंड क्या हुआ? असेसमेंट में तो आपका सब कुछ फेवर में किया, लेकिन यहाँ डिमांड आ गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट लीजिए कि 156 को रीड विथ ऑर्डर, आप पहले इसका रेक्टिफिकेशन फाइल कराइए। तब आपने जो डिमांड नोटिस किया और साथ में जो आपने, बिकॉज दैट डिमांड नोटिस इज पार्ट ऑफ दैट असेसमेंट ऑर्डर, सो ये सर आपने कंपटीशन आपका गलत बन गया, सो दैट शुड बी रेक्टिफाइड। अगर वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर देता है और आपको फेवर में नहीं करता है, आप अपील कर सकते हैं। तब आप अपील उस डिमांड के अगेंस्ट में कर रहे हैं, नाउ यू आर अग्रीड विद दैट डिमांड। अदरवाइज तो आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बोलेगा आपके पास तो एक ऑप्शन है ना, रेक्टिफिकेशन करा के देखो। तो ये हमें आप बैठ के भी कर, मतलब आप चूंकि रेक्टिफिकेशन का पावर आपके जुरिस्डिक्शनल लेओ के पास होता है, तो आप करा सकते हैं इसको। फाइलिंग ऑनलाइन होगी, डिस्पोजल ऑफलाइन होता है, आप डिस्कस करके आपका आपका प्रेजेंस होगा, फिर बाद में ऑर्डर ऑनलाइन ही आएगा आपके पास। हिस्ट्री ऑफ डिमांड ये हमने डिस्कस किया। 30 डेज के अंदर आपके पास वो डिमांड आपको पे करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टे का एप्लीकेशन फाइल कर देना पड़ेगा। स्टे मिलता नहीं है, वो कहते हैं 20% जमा करा दो। क्या 20% ब्लैंकेट है? 20% ब्लैंकेट नहीं है। अगर एओ को लगता है एसएससी तो चला जाएगा, एसएससी रेगुलर ऑफेंडर है, तो उस केस में वो बोलेगा मैं नहीं मानता, आपको ज्यादा जमा कराना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि रीजनेबल कॉज है इसके, ये नहीं दे सकता पैसा, वो रीजनेबल कॉज क्या होगा? आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा फाइनेंशियल इनेबिलिटी है, मैं नहीं दे सकता। कैसे पता चलेगा? बैंक स्टेटमेंट लगाइए, प्रूफ कीजिए, लास्ट 2-3 ईयर्स का रिटर्न लगाइए, आप देखो मेरा इनकम मेरे स्टेटमेंट में ये हाई पिच असेसमेंट के केसेस में स्टे ऑन डिमांड के बारे में हाँ कुछ सर, भी। हाई पिच के लिए इन्होंने अलग से कमिटी भी बनाई हुई है, हाँ, जहाँ जो सुनता नहीं है, वो कमेटी ऐसी है जिनका से आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसका कुछ नहीं होगा, और यहाँ से डिमांड नोटिस आपके पास आता रहेगा। सो अगेन वही आप, उस केस में ये हाई पिच असेसमेंट कमेटी पे हमने रेफर किया हुआ है, और जब तक वो ऑर्डर नहीं दे देते तो क्या स्टे ऑन डिमांड हमारा अवेंस रहेगा? टेक्निकली होना यही चाहिए, क्योंकि मैं उस डिमांड के अगेंस्ट में ही तो उस कमेटी के पास हूँ। टेक्निकली होना ये चाहिए कि मैं उस डिमांड के अगेंस्ट में ही कमेटी के पास हूँ, लेकिन ये मानते नहीं है, ये अपना नोटिस भेजते रहते हैं, और अगर आपने डिले किया तो ये सीधा बैंक अटैच कर देते हैं, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हाई पिच असेसमेंट हुए हैं, उनको पता है इसका इसका टैक्स 20 लाख बनता है, वो असेसमेंट करेंगे 1 करोड़ का, और आपको बोलेंगे 20% जमा करा के आप स्टे ले लो। उनको तो जितना पैसा चाहिए था वो आ गया। और जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हाई पिच डिमांड की जो कमेटी बनाई है, वहां पे कोई नहीं सुनता, केसेस 2-2, 3-3 साल तक डिस्पोज नहीं हो रहे, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो, अगर आपका कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, हमारी तो आज तक एक भी, सारी की सारी पेंडिंग ही है। यही है सर, यही है। उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया था 29/2/2016 का, जनरली ये नोटिफिकेशन जो एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू आया था। हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन डिपार्टमेंट अपने ऊपर बाइंडिंग आपकी वो, चूंकि वो बाइंडिंग है और इसके थ्रू आपको बाइंडिंग कर देता है, तो कहते हैं ये आपको करना पड़ेगा, और ये आप इसके ऊपर फाइट कर सकते हैं आप। लेकिन आप, मैंने जैसा पहले बताया था, स्टे ऑफ डिमांड इज अ सेपरेट असाइनमेंट,
स्टे ऑफ डिमांड को आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बहुत सिंपल काम है, मैं जाकर जाऊंगा और वो मेरे को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको ये सेपरेट असाइनमेंट की तरह लीजिए, और ये इसका फिजिकल एप्लीकेशन जाता है। आपके कितने चक्कर लगेंगे आपको पता है, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो हायरार्की में आप चला जाएगा। एओ के AO जो एओ है वो तो नहीं मानेगा, ये तो पक्का है। फिर आप कमिश्नर के पास अप्लाई कीजिए, प्रोसेस वही है, जाने का रास्ता वही है, लेकिन वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा इसमें। कैन एओ कैन द एओ इंसिस्ट फॉर लमसम पेमेंट विच इज हायर देन 20%, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए उन्होंने बोला कि ये 2-3 सिचुएशन है जहां पे कि वो ज्यादा भी आपसे मांग सकता है। वेयर द सुप्रीम कोर्ट और द जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड द इशू इन रेवेन्यूज फेवर। ऑलरेडी पिछले सालों में सेम केस पे फेवर में आ चुका है, उसको पता है इसको रिलीफ नहीं मिलने वाला है, मैं पूरा दे दूं आप। द एसएससी हैज पास्ट हिस्ट्री ऑफ लिटिगेशन एंड असेसमेंट ऑन द सेम इशू हैज बीन अफर्म्ड इन अपीलेट प्रोसीडिंग इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। इन केसेस में बोलेगा, उसको पता है कि ये तो फाइट करेगा ही करेगा, ये चलता रहेगा, इसका मेरे को दे दो। सर्वे ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट अगेंस्ट द एसएससी और टैक्स डिमांड इज बेस्ड ऑन द क्रेडिबल एविडेंस। एसएससी को इतना एविडेंस है, उसको पता है कि ये इसका रिलीफ नहीं मिलने वाला है। और ये तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप उसी असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हैं जिसके पास आप पहले आपका असेसमेंट हुआ है। अभी तो खैर सिचुएशन चेंज हो गया, अभी आपको नहीं पता कि एनएफएससी किसके पास भेज रहा है। स्टे में आप अलग जगह जाते हैं तो शायद सुनवाई हो भी जाती है। पहले तो सिचुएशन यही था, सेम ऑफिसर जाएंगे, उसको तो पता है, उसने तो उसी ने असेसमेंट किया है, वो कैसे ये बात को मान ले कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इसीलिए इसका 20% से कम लगाओ, कभी नहीं मानेगा। So application for stay of demand में the power of the appellate authority to stay recovery, इस सेम चीज सर, जो प्रोविजंस ऑलरेडी आपको, अगर आप गाइडलाइन पढ़ेंगे उसमें ही ये सारा कुछ निकल के आता है। सो इन द केस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट held that the commissioner appeal is vested with the power. So the question आया कि क्या सीआईटी अपील को भी स्टे एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है? So एप्लीकेशन ऑफ स्टे ऑफ डिमांड टू सीआईटी अपील, मैं सीआईटी अपील को स्टे के लिए फाइल कर रहा हूँ। एओ के पास तो मैंने कर दिया, क्या सीआईटी अपील को भी सेपरेटली करूं? जैसा मैंने आपको बताया, आप करेंगे, आपको करना ही चाहिए, बल्कि आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट होना चाहिए कि मैं यहाँ पे भी स्टे मांग रहा हूँ, लेकिन आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका केस कब पिक होगा ये आपको भी नहीं पता। अभी सर 4 साल से तो हमारे केसेस लगे हैं, जो 19 में हमने फाइल किया था वो 23-24 में कोई 1-2 नोटिस में आए हैं, बाकी में नहीं आए। और मुझे लगता है कि ये सारे लोग इस तरह का सिचुएशन को फेस कर रहे हो। अभी इन्होंने एक ज्वाइंट कमिश्नर करके एडिशनल पोजीशन डाला नहीं है। सर, अपील में सर आपने कोई एडजॉर्नमेंट या रिस्पॉन्स नहीं किया तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, टोटली एग्री विथ यू सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी हाँ सर, आ रही आवाज है आ आपकी। रही है सर। हाँ हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आप वो क्या करते हैं, 250 का जो एक नोटिस आपको भेजते रहेंगे और उसमें वही भेजेंगे और आपसे मांगेंगे कि आपने जो पहले सबमिशन दिया उसकी कॉपी दे दीजिए, 2-3 राउंड तो यही चलता है। यस यस और आपको यस। फाइल करना पड़ता है, आपके पास कोई मजबूरी होती है, क्योंकि अगर आप बाई चांस मिस कर गए तो बोलेंगे आपने रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए हम आपका केस को हाँ हमने ऑर्डर पास कर दिया इसका। यस। एक्चुअल में क्या है कि वो पीछे, जहां तक मेरे को समझ में आया और सुनने में आया डिपार्टमेंट से, 180 डेज के बाद रीसफलिंग ऑफ द अपील हो जाती है, हाँ यस यस, अनदर अपील अपॉइंट हो जाता है उस केसेस में। तो वो पीछे के बैकग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं करते और वो कहते हैं न्यू बिल्कुल सर, एप्लीकेशन या बिल्कुल बिल्कुल सर। आवाज आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है ना? ठीक है सचिन सर, भाई। ठीक है सर। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, किसको किसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी में अमेंड द ऑर्डर। आप देखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा, अमेंड द ऑर्डर, ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। सो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए,
143(1) के केस में इंटीमेशन बोला गया, 200 कैपिटल ए और 206 सीबी के केस में इंटीमेशन बोला गया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। सो असेसमेंट ऑर्डर के केस में भी आप जाके रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। नो अमेंडमेंट under this section shall be made after the expiry of 4 year from the end of the financial year in which the order short to payment is passed. So अभी जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुए हैं वो किस फाइनेंशियल ईयर में हुए? 23-24 में हुए। तो आप 24 का 4 साल, 24 से 28 तक के अंदर में आपका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। सो रेक्टिफिकेशन के लिए आप बहुत लंबा वेट मत कीजिए, आप फाइल कीजिए। टेक्निकली मैंने कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं, एक बार रेक्टिफिकेशन फाइल किया नहीं हुआ, फिर दोबारा किया, फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा किया। ऐसा मत कीजिए। आप कोर ऑफ द केस में जाइए कि क्या मेरा ऑर्डर जो जिसको मैं रेक्टिफिकेशन के लिए लेके जा रहा हूं वो रेक्टिफिएबल है भी कि नहीं है। अगर वो रेक्टिफिएबल नहीं है, जैसे कि आपने असेसमेंट में टीडीएस का क्रेडिट का अमाउंट नहीं डाला, आपको रिफंड नहीं मिला, आपका 143(1) हो गया। आप कहते हैं जी मेरा, और उस समय तो वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा था, तो आप कहते हैं मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, इसका रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। नहीं करेगा। गोडजे का जजमेंट है, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो आप मांगेंगे, जो आप मांगे ही नहीं आपको क्यों मिलेगा? तो आपने अपना टैक्स का क्रेडिट का क्लेम मांगा ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी देखना है, आप उसका रेक्टिफिकेशन फाइल करते रहेंगे कुछ नहीं होगा, तो आप बेटर है अपील में जाइए और आगे केस अपना कीजिए। फॉर्म 67 फाइल नहीं किया टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 फाइल नहीं किया और आपका आपका डिमांड आ गया, आप बोलेंगे तो एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड, रेक्टिफिकेशन फाइल करो, कुछ नहीं होने वाला है। अपील फाइल कीजिए और प्रॉपर तरीके से कीजिए, बहुत सारे जजमेंट है आपको फेवर में जाएगा। ये वो एग्जाम्पल है जो हम लोग जनरली देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केसेस में ये अप्लाई होगा। सॉरी। सर उस केसेस में जहाँ 6 महीने निकल गए हैं रेक्टिफिकेशन के केसेस में, डीम्ड है? नहीं, ऑर्डर पास कि करने मान टाइम है, लीजिए ऑर्डर पास करने टाइम है उनके पास। वो निकल गया, तो 6 महीने से ज्यादा हो गए सर। हम्म और 154(8) में तो मेंशन है कि 6 महीने से ज्यादा निकल जाते हैं तो डीम्ड मान लिया जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं डीम्ड मान लेकिन लिया कि होता तो, रेक्टिफिकेशन हो गया। हाँ। अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस कराए हैं जिसमें वो 6 महीने के बाद तक भी होता रहा और उसके बाद भी हम उन्होंने जाकर रिजेक्ट किया और एक दो केसेस में एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वो बाद तक भी चलता रहा। तो ये मैंने सर, आप बिल्कुल आप पॉइंट बिल्कुल सही रेज कर रहे हैं सर, बट मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया कभी। हम्म सो रिप्लाई ऑफ पेनल्टी नोटिस, आपके पास असेसमेंट जैसे कंप्लीट हुआ कुछ पेनल्टी का नोटिस आएगा। पेनल्टी नोटिस में हम लोग ऐसा जनरली परसेप्शन है, अगर असेसमेंट में मेरा डिमांड आया है तो पेनल्टी नोटिस में भी डिमांड आ जाएगा, या पेनल्टी नोटिस तो कंफर्म हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेनल्टी नोटिस डिफरेंट एक्सेस पे काम करता है, सेक्शन 270 कैपिटल ए, whether it is अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग। कई बार आपका केस मिस रिपोर्टिंग में फॉल करता है, कई बार आपका केस अंडर रिपोर्टिंग में फॉल करता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अंडर रिपोर्टिंग तो है, मिस रिपोर्टिंग तो है बट अंडर रिपोर्टिंग नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग होगा तो अंडर रिपोर्टिंग हुआ होगा तभी मिस रिपोर्टिंग में गया है। तो अब टू टू होना जरूरी है। सो 272 कैपिटल अंडर ब्रैकेट 2 होगा तभी 9 में आप तभी 9 में जा सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप 9 में नहीं पहुंच जाएंगे। तो आपको ये भी देखना है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने मेरे पे एलिगेशन लगाया है वेदर इट इज अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। लेकिन आजकल ये लोग क्या करते हैं, असेसमेंट ऑर्डर में लिखते हैं, वो क्लियर नहीं करते कि आप अंडर रिपोर्टिंग में जा रहे हैं या मिस रिपोर्टिंग में जा रहे हैं। तो क्या पेनल्टी नोटिस शुड बी प्रॉपरली इशूड अगेंस्ट दिस ऑर्डर, ऐसे करके कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। अब किस आप किस केस में मुझे ले रहे हो, आपको तो बताना पड़ेगा, चार्ज तो फ्रेम करना पड़ेगा। आपने चार्ज मेरा फ्रेम नहीं किया, आपने बताया नहीं कि मेरा मिस रिपोर्टिंग है, अंडर रिपोर्टिंग है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। If penalty notice is not mentioned in the, if penalty is not mentioned in the assessment order, no penalty can be invoked। आपके असेसमेंट ऑर्डर में पेनल्टी का जिक्र ही नहीं किया गया, तो क्या पेनल्टी नोटिस सर सेपरेट? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारे एक असेसमेंट के अंदर पेनल्टी इनिशिएट नहीं की गई। असेसमेंट ऑर्डर में पेनल्टी नहीं लिखा गया।
इनिशिएट ही नहीं की गई। हाँ लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें जमा कराना है, ईएसआई पीएफ का केस है, जमा कराना है टैक्स बेसिकली। हमने जमा करने के बाद फॉर्म 68 वेवर ऑफ पेनल्टीज भी फाइल कर दी। ओके, ठीक है, ठीक है। आप वो कर रहे हैं 30 डेज। मतलब आपके ऊपर वो एलिगेशन नहीं लगाया गया, पेनल्टी का नोटिस नहीं दिया गया, फिर भी आप जाकर सुओ मोटो कह रहे हैं भाई मेरे पेनल्टी नहीं लग हाँ, पाई। पेनल्टी का नोटिस नहीं दिया था, ऑर्डर के अंदर पेनल्टी लगाई हुई थी। और फिर हमने विद इन 30 डेज मिस रिपोर्टिंग की थी, तो पेनल्टी का नोटिस तो इश्यू ही नहीं किया था, हमने 68 का फॉर्म फाइल कर दिया। हाँ फिर उसके बाद सीआईटी ने एक्सेप्ट करा कि हाँ ये मिस्टेक है, और एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्होंने वेवर ऑफ कर दिया। हाँ, तो आपने पे कर दिया और आप वेवर के लिए चले गए, एसएससी ऑफिसर को लगा कि चलो गलती हुई है हमारे से, टैक्स जमा करा रहे, चुपचाप रहो, ले लो इनसे, वेव कर दो। टेक्निकली अगर हाँ आप चाहते तो आप चुपचाप रहते पेनल्टी के केस में, आप नोटिस नहीं करोगे तो मैं क्यों जाऊंगा। सो वो ये दो नहीं, एक्चुअल में मेरे आपने में जो पॉइंट रेस किया बहुत इंटरेस्टिंग मिस है। रिपोर्टिंग के फ्रेम किया, मिस रिपोर्टिंग का फ्रेम किया हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, What- आपने पॉइंट रेस किया बहुत इंटरेस्टिंग है। सीआईटी असेसमेंट ऑर्डर में है लेकिन नोटिस इशू नहीं किया आपके केस में, हाँ, यस। तो आप जाके खुद ही लेकिन क्या वो केस सस्टेन करेगा? टेक्निकली वो केस सस्टेन ही नहीं करेगा, नोटिस करना पड़ेगा आपको, बिकॉज पेनल्टी का नोटिस के लिए अलग सेक्शन दिया हुआ है और वो सेपरेटली इशू होता है, 274 पे जाके वो कवर होता है ना सर। तो पेनल्टी का नोटिस, यस, एक यस, सिचुएशन और लेते हैं, आपने असेसमेंट ऑर्डर में इसका चर्चा ही नहीं किया पेनल्टी का, हाँ, लेकिन आप पेनल्टी नोटिस इशू कर रहे हैं, तो भी आप बोल सकते हैं आपका तो ग्राउंड, आपने जो मैंने असेसमेंट किया उसमें आपने पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, देन हाउ यू कैन इन्वोक द पेनल्टी, कैसे आप पेनल्टी लगा सकते हैं मेरे को। सो आपके पास ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राउंड बनेगा केस लड़ने के लिए। A separate notice is required to be given to the SSC mentioning the full facts with reason regarding the invocation of penalty। ये लॉ में लिखा हुआ सर कि आपको ये करना है, तो तभी होगा, अदरवाइज अगर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा रहा है बिना नोटिस का तो हो ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं। The SSC shall be given reasonable opportunity of being heard before passing the order of penalty। तो और उसको टाइम देना पड़ेगा, शो कॉज आएगा, शो कॉज का रिप्लाई कीजिए, शो कॉज नहीं आया आप कह सकते हैं भाई इन्फ्रक्चुअस हो गया। प्रकाश भाई एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। हाँ सर, हाँ सर। हमारे केस में पेनल्टी इनिशिएट करी, 10 लाख रुपए की डिमांड थी, और वो मिस कैलकुलेशन थी डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमने वेवर ऑफ पेनल्टी भी फाइल कर दी साथ में जमा करने के बाद। आज 4 साल के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, डिमांड आपकी 25 लाख रुपए की थी, हमने वेवर ऑफ भी ले लिया। अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ, तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन कई सारे लोगों के पास जब भी ऑडिट हुई हम्म, इंटरनल, हाँ हाँ, एक्सटर्नल ऑडिट हुई, तो उसमें उन्हें फाइंड आउट हुआ कि ये डिमांड गलत गई हुई। अच्छा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लेके आ रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फीलिंग होता है असेसमेंट ऑर्डर आ गया तो पेनल्टी आएगा साथ में आ जाता है, और हमें मान लेते हैं अगर हमारा टैक्स लगा है तो पेनल्टी भी लगेगा, लेकिन हम बहुत सारे फैक्ट्स को, ये जो मैं आपको अभी मेरा डिस्कस कर रहा मेरा हूँ, मानना यह है कि कंप्यूटेशन जरूर चेक करनी चाहिए। जरूर चेक कीजिए सर, जरूर चेक कीजिए। 99% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बाई मिस्टेक 234B वाली कैलकुलेशन तो 100% रॉन्ग ही है, जो बिल्कुल वो सिस्टम से जनरेट कर। बिल्कुल। सर मैं अपना एक लाइव केस दे रहा हूँ, मेरे केस में एसएससी ने रिटर्न फाइल किया, उसको पता चल गया कि मैंने टैक्स गलत कंप्यूट किया है, लेकिन तब तक रिवाइज करने डेट खत्म हो गया था, तो उसने जो टैक्स शॉर्ट जमा कराया था वो टैक्स जमा करा दिया, एंड वो अमाउंट था करीब 1 करोड़ रुपया जो उसने जमा करा दिया। केस असेसमेंट में लगा, उसके बाद उसका हमने एक्सेप्ट किया हुआ था ही, हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिशन और डिमांड भेजा, उसमें उस 1 करोड़ जो जमा कराया था वो कंसिडर ही नहीं किया, और उन्होंने मेरा इंटरेस्ट शुरू से लगाया अभी तक का, जब तक असेसमेंट का डेट था। मैं ये तो हमने पहले पे कर दिया, आज से 1.5 साल पहले पे किया हुआ, तो मेरा 1.5 साल का इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने जमा किया, वो कह रहे हैं वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसको। तो सर आप जो बता रहे हैं दीज आर ऑल वेरी रिलेवेंट, बहुत सारी चीजें वो ऐसी इसलिए सिस्टम में इसलिए नहीं उठाता क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट में टैक्स जमा कराया होगा, रिटर्न फाइल करने के बाद वो रेगुलर पेमेंट में जमा होना चाहिए था। लेकिन असेसमेंट के दौरान तो हमने ये बता दिया ना कि हमने इसका टैक्स पे कर दिया है, चालान हाँ, की कॉपी ले फिर ली है, सब एक्सेप्ट, कुछ हाँ, हुआ है।
तो आप तो असेसमेंट के बेसिस पे ही मेरा टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और आप उस वो इम्पोर्टेंट सिस्टम फैक्ट को जनरेटेड है कंसीडर ना, नहीं। तो वो सिस्टम जनरेटेड है ना, वो दिमाग तो लगाते ही नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि आप असेसमेंट तो कर रहे हैं माइंड अप्लाई करके, लेकिन जो डिमांड निकाल रहे हाँ, हैं वो आप सिस्टम से निकाल रहे वो हैं, सिस्टम वो उसमें। जनरेटेड है। हाँ। बिल्कुल। तो मेरा जो हम लोग का जो डिस्कशन का जो मुद्दा था वो यही था कि जो भी आप जब आप अपील फाइल करें, आपके असेसमेंट ऑर्डर आता है, बी वेरी केयरफुल, असेसमेंट ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए लाइन बाय लाइन। और एक बार में संतुष्टि नहीं होगा, आपको 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मिस्टेक फाइंड आउट कर पाएंगे एक्चुअली में। दूसरा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपोटेशन को सेपरेटली चेक कीजिए और डिमांड नोटिस को सेपरेटली चेक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सेपरेटली करना है। शो कॉज नोटिस पेनल्टी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे असेसमेंट में शो कॉज नोटिस होता है, वैसे पेनल्टी में भी शो कॉज नोटिस आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं आया है तो आप बोल सकते हैं और तो पेनल्टी ऑर्डर इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, नहीं हो सकता है। SSC shall be allowed a reasonable time to reply the SCN. Reply of the SSC should be confined to the provision of the relevant penalty. So आपको फोकस करना है पेनल्टी का सेक्शन के ऊपर। 270 कैपिटल ए को जब आप रिप्लाई कर रहे हैं पेनल्टी का, तो 270 कैपिटल ए को ध्यान से समझ के इम्प्लीकेशन देख के तब कीजिएगा। 50% 200% का गैप बहुत बड़ा होता है। तो 6:15 बज गया ऑलमोस्ट। हमने एक और शॉर्ट स्लाइड बनाया है कॉमन मिस्टेक्स के लिए कि हम क्या क्या गलती करते हैं। सो फाइल द रिटर्न विदाउट क्लेमिंग द TDS इन द रिटर्न। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, हमने TDS क्लेम ही नहीं किया रिटर्न में। हम कहते हैं कि ये तो वो तो दे ही देगा मुझे। फाइल द रिटर्न बट टैक्स डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली। जो आपने भी बताया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स जमा नहीं कराया, बाद में जमा कराया, सेल्फ असेसमेंट में जमा कराया, सिस्टम कैच नहीं करेगा, कैसे करेंगे उसको। एडिक्वेट एविडेंस इज नॉट प्रेजेंटेड टू सब्सटेंशिएट द कंटेंशन और सबमिशन। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को बार बार लिख के दे रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं साथ सपोर्ट कर रहे हैं आपका, नॉट वैलिड। सिंपली लिखना बोलना इज नॉट सफिशिएंट, आपको डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाना पड़ेगा। रॉन्ग प्रोविजन ऑफ लॉ एब्स्ट्रैक्टेड टू रेफर। आपने लिखते समय गलत सेक्शन को रेफर कर रहे हैं, मत तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि कौन सा सेक्शन को मुझे रेफर करना है। वाइल ड्राफ्टिंग द सबमिशन विदाउट नोटिसिंग द पीरियड ऑफ डिस्प्यूट। पता चला वो सेक्शन उसमें एप्लीकेबल ही नहीं था, आप उस सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं। कोई सेक्शन उस समय जा चुका है, आप उस सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। रॉन्ग प्रेसिडेंट्स मे बी अप्लाइड वाइल ड्राफ्टिंग द सबमिशन। मैंने जैसा बोला, जजमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं तो ध्यान से दीजिए। पता चला आपने कोई ITT का जजमेंट उठा के दे दिया, बाद में जाके वो हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि आगे का क्या फेट रहा, आपके अगेंस्ट में चला गया वो। क्योंकि वो असेसिंग ऑफिसर को एक बना बनाया आपने प्लेटर में दे दिया कि सर मेरा केस ये लो, और मैंने ऑलरेडी खराब कर दिया, आप और बाकी का कर दो। वो नहीं करना है सर हम लोग। नीदर स्टडीइंग द नेचर ऑफ बिजनेस नॉर नोइंग द पास्ट बैकग्राउंड ऑफ द टैक्स पेयर। इसलिए KYC बहुत जरूरी है। जब आप अपना सबमिशन बना रहे हैं तो ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द SSC जरूर डालिए, हाफ पेज का। SSC मेरा करता क्या है, कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई उसका सब्सिडरी है और होल्डिंग कंपनी का रिलेशन है तो वो भी दिखाइए, सो दैट कि आपका ट्रांजेक्शन को वो अगर आपका उससे रिलेटेड है तो, सो दैट कि AO को समझ में आए। पहले तो हम जाके समझाते थे, सर ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो वो समझ जाता था। अभी हम समझा नहीं सकते तो हमें लिख के बताना पड़ेगा। नॉन रिब्यूटल ऑफ एलिगेशन ऑन फैक्ट्स में बी इन्फर्ड ऑन द सबमिशन ऑफ द ऑन द एडमिशन ऑफ द फैक्ट्स। सो जो भी पॉइंट्स उसने रेज किया है आप उसको रिवर्ट कीजिए। आपको तो बताना है आपने जो किया सब गलत, बाकी का आप तो देख ही लेंगे आगे जाके। ठीक है ना सर। सो ये छोटा सा मैंने अपना कोशिश किया था कुछ पॉइंट्स रखने के लिए। अभी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। नहीं तो नोटिस आने पर जैसे क्लाइंट थोड़ा सा डर जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसे सीए भी डरे ना, और असेसमेंट ऑर्डर को अच्छे से पढ़ें, कंप्यूटेशन अच्छे से देखें, और उसके बाद जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे अगर करें तो मेरे को लगता है क्लाइंट के फेवर में हम लोग वो नोटिस को ला सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। और जैसे जैन सर ने भी बताया कि भाई वेवर ऑफ पेनल्टी का क्या क्लॉज रहता है, कैसे कर सकते हैं। तो जैन सर थैंक यू सो मच। आपके और सचिन सर की मेरे को लगता है एक्सपर्ट नॉलेज से हम लोग सारे सीए को बहुत फायदा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी मेरे
चलो सीए हैं, इनकी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप जल्दी से पोस्ट कर दें। So how to rectify assessment year in चालान? चलो, तो चालान में अगर आपका असेसमेंट ईयर गलत डल गया, सो अब मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ना कि टीडीएस की बात कर रहे हैं। सो अगर चालान में अगर ईयर गलत डल गया तो आई थिंक इसका इसका रेक्टिफिकेशन होता है सर। सीएम जन सर, जन साहब आपका क्या व्यू है इसमें? रेक्टिफाई होता है विद इन 30 डेज, तो ऑनलाइन होने लगा है सर्वे। उसमें चालान ईयर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ई पोर्टल पे अवेलेबल है विद इन 30 डेज। आफ्टर 30 डेज आपको ईओ से ही जाके रेक्टिफाई कराना। सो ईओ के पास जाना पड़ेगा और आपको वहां से, और आपको एक साथ में इंडेमनिटी बॉन्ड भी मांगेगा आपसे कि आपने हाँ, इस चालान को कहीं यूटिलाइज तो नहीं किया हुआ है। नहीं किया। सो ये प्रोसेस का पार्ट होगा आपका। सो इंडेमनिटी बॉन्ड आपको देना पड़ेगा कि मैंने ये चालान को कहीं यूटिलाइज नहीं किया है, और एक ओथ की तरह देना पड़ता है, अगर इसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है तो मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। इंडेमनिफाई करूंगा इसको। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अभी सर्कुलर जो आया है इनऑपरेटिव ऑफ पैन के लिए, उस पे तो जो 30 जून 2024 तक जितने भी पैन एक्टिव हो जाएंगे उनसे रिलेटेड कोई टीडीएस की डिमांड है तो वो ऑटोमेटिकली तो रेक्टिफाई नहीं होगी, वो आपको जाके करानी होगी, तो वो करा लीजिएगा सभी। यस सर, करेक्ट। अदरवाइज तो इशू आएगा, वो डिमांड बाद में रेज हो। हाँ हाँ, करेक्ट सर। ठीक है, और तो कोई पॉइंट नहीं है रितु मैम? मेरे को लगता है हाँ सर, चैट बॉक्स में और किसी को कोई वो नहीं है, कोई सो डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने इतने अच्छे से समझाया है सचिन सर, मतलब मेरे को लगता है फर्स्ट कहीं ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ डाउट ऑल की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल। सीएम जैन सर साथ में थे तो मुझे एक सपोर्ट भी मिला और एक मोटिवेशन भी मिला, और मेरे लिए ये बहुत एक मतलब बड़ी बात है कि मैं जैन साहब के सामने प्रेजेंट कर रहा था अपना अरे नहीं 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 भाई सचिन जी, स्लाइड। और आप वैसे ही मास्टर आदमी है इस फील्ड में। थैंक यू सो मच टू कासा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। आई थिंक कुछ हाँ, चैट बॉक्स में है तो वो देख लीजिए। रेक्टिफाई इन विच प्लेस, व्हाट डू व्हाट टू डू इफ टीडीएस टीडीएस इज नॉट अलाउड। सर एक क्वेश्चन आया है, व्हाट टू डू इफ टीडीएस इज नॉट अलाउड। सो टीडीएस इज नॉट अलाउड मीन्स आपने टीडीएस का क्रेडिट आपका डिसअलाउ हो गया। टीडीएस नॉट हाँ, अलाउड का मतलब तो ये हुआ कि टीडीएस का आपका एक्चुअल क्रेडिट में डिसअलाउ हो गया। कुछ केसेस में हम्म, प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउड कर दे रहे हैं। हाँ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपका आपने जो टर्नओवर दिखाया हुआ है बुक्स में, और जो आपने आपका 26 ईयर्स में जितना आपने क्रेडिट मांगा है, अगर उस वो मिसमैच हो रहा है तो ये पहले आपको रेक्टिफिकेशन इसके लिए देते हैं कि आपका क्यों ना इसको डिफेक्टिव रिटर्न में ले जाया जाए। तो नहीं, पहले एक आपको एक बार इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मेरा हम्म जो क्लाइंट था वो सैलरीड एम्प्लॉय था, उसकी हम्म 1 CR की करीब सैलरी थी, उस पे उसने टीडीएस डिडक्ट हुआ हुआ था। और कैपिटल गेन होने वाला था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टीडीएस हम्म डिडक्ट हो गया, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया इस साल। हम्म अब लेकिन वो रिपोर्ट हो रहा था तो उन्होंने उस कहा कि आपने इनकम डिक्लेयर नहीं की, उस प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे डिमांड क्रिएट कर दी उन्होंने सर। उतना उन्होंने डिसअलाउड कर दिया कि आपने सैलरीड की 1 करोड़ की इनकम दिखाई हुई है, 2 करोड़ रुपए की आपकी इनकम होनी चाहिए थी, आपको 50% टीडीएस अलाउड होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो 50 लाख रुपए की डिमांड निकाल के उन्होंने दे दी। इंटरेस्टिंग चीज और जो आपने बताया उसमें थोड़ा मैं और ऐड कर देता हूँ। सो टीडीएस का क्रेडिट अगर आप लोगों को याद हो, पहले मिसमैच होता था तो 143(1) में इंटीमेशन में आ जाता था कि आपका मिसमैच हो गया। हम्म, उसका 2018 में वो अमेंडमेंट हो गया, उसको हटा दिया गया, उस 143(1) में से हटा दिया गया। अब ये अभी भी यस। ये लोग उसको वेरीफाई करते हैं और ये आपको डिफेक्टिव रिटर्न की तरफ लेके जाते हैं। आपको आपको यस। रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न में चला जाएगा, और आप 15 डेज के अंदर रिप्लाई करके इधर एक्सेप्ट और अपना बात को आपको रखने का मौका मिलता है। बट वो बहुत सिंपल सा चीज होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया हुआ है चूंकि उस सेक्शन में, इसलिए वो कहते हैं कि आप अपनी बात रखो। मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दैट इज ऑल नेक्स्ट लेवल का चीज है, वो मानते ही नहीं है। So 143(1) issued issues and rectification has been filed, but no benefit.
सो सर, अगर आप टीडीएस का क्रेडिट आपको नहीं मिला है रिटर्न के टाइम पे, या आपने नहीं क्लेम किया है, तो आप वन रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का गोडजे का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर एसएससी क्लेम नहीं करता है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको मांगना पड़ेगा पहले, तब आपको मिलेगा। आपने नहीं मांगा, आपको रेक्टिफिकेशन से आपको कुछ नहीं नहीं मिलेगा। होगा, आपको अपील करना पड़ेगा। यस, वी हैव क्लेम्ड इन द रिटर्न। अगर आपने आईटीआर में क्लेम किया हुआ है 26 ईयर्स में आपका वो आ रहा है, तो फिर आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू करा सकते हैं। अगर एक बार ट्राई कीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो टाइम मत वेस्ट कीजिए इसमें, सीधा अपील में जाना पड़ेगा। तो आपको 143(1) का इंटीमेशन आपका से आप अग्रीव्ड है, इसका मतलब ये हुआ। रेक्टिफिकेशन आप कीजिए, लेकिन वो बार बार, कई बार ना, वो एक दो बार करना पड़ता है, तब वो जाके आपको बेनिफिट मिलता है। ये सिस्टम का ग्लिच है, लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सिस्टम के कारण ऐसा होता है। आप 154 फाइल करते हैं, वो एज इट इज वापस कर देते हैं, फिर आप दोबारा करते हैं, फिर वापस। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार वो एक्सेप्ट करते हैं, ये भी चीज है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू रितु मैम। थैंक यू। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू जैन सर। सुमित सर आई थिंक नहीं है, वो शायद कहीं बिजी हैं, लेकिन आशा जी हमारे साथ हैं। तो मैं आशा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दो शब्द बोले। आशा जी म्यूट हटा लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आशा जी आपका यू आर ऑन अ म्यूट मोड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वो कह रहे हैं कि होस्ट ही अनम्यूट कर सकता है। अच्छा, ऐसा है क्या? थैंक यू सर। अनम्यूट हो गए फाइनली। एक्चुअली मैं बीच में कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं देखा अच्छा अभी तो ये म्यूट तभी आपको म्यूट म्यूट किया हुआ था, अनम्यूट हो नहीं तभी सकता म्यूट किया हुआ था। मैं। क्या पूछो ही मत। नहीं नहीं, वैसे इतनी लिबर्टी तो मैं ले लेती हूँ आपसे कि कॉल कर लेती हूँ कभी। बट यस, काफी अच्छा रहा सर, कि थैंक यू बहुत सो मच। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग कई बार स्किप कर जाते हैं, तो एक अच्छा पूरा का पूरा रहा। और सीएम जैन सर ने काफी इसको तरीके से, जो एक्चुअल में हमें कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है उसको वहां पे रेस करके सर काफी एक अच्छा लगा उस चीज में। एंड ये जो टीडीएस वाला इशू है, ये वाकई में काफी इशू आ रहा है। जैसे मेरे भी क्लाइंट के साथ उसके सैलरी की दो टाइप के आई। एक सैलरी में जिसमें उसको फॉर्म 16 का टीडीएस अलाउ नहीं किया, जो 26 एस में प्रॉपर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। 4 बार रेक्टिफिकेशन फाइल की तो एक छोटा सा अमाउंट अलाउ कर दिया। फाइनली उसकी अपील फाइल की हुई है, और ये बात है असेसमेंट ईयर 2021 की। अभी तक कोई हियरिंग नहीं आई, उसके आगे के रिफंड एडजस्ट हो चुके हैं। अभी वेट कर रहे हैं कि हियरिंग आए, वो अलाउ हो, फिर बाकी के रिफंड को लेते हैं उससे। एक ये केस हो रहा है। दूसरा केस जो भी मेरे ख्याल से सर भी, सीएम जैन सर ने भी वही डिस्कस किया मैम था सॉरी, आईसीएल से। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा यहाँ पे। हाँ सर। अपील कराना और अपील इफेक्ट दिलाना दोनों अलग अलग असाइनमेंट है। हाँ। अपील इफेक्ट दिलाना अपने आप यस। में बहुत बड़ा काम है, तो आप उसको राइट, अलग अलग अग्री। असाइनमेंट लीजिएगा। आप ऐसा मत अग्री। मान के चलिए कि अपील हो गया तो असेसमेंट एक नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग अग्री। फैक्ट बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो ईएसआई पीएफ का जजमेंट आया, उससे पहले कई सारे मैंने ट्रिब्यूनल से जजमेंट कराए हुए थे, लेकिन अपील इफेक्ट आज तक नहीं दिया ना। डिपार्टमेंट फर्दर हाई कोर्ट में गई हुई है, कहती मैं नहीं दूंगी। मैडम है एक, उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी मैंने इफेक्ट। जो एक्सपीरियंस था मैंने रखा आपके सामने, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मैंने अपील कहा आप के। इफेक्ट तो आप हाँ, और इफेक्ट मैंने कहा आप ऑर्डर तो पास करो, इफेक्ट उसमें लिख दो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप, बेसिकली हम्म। आप लिखो तो। लेकिन वो भी लिखने को तैयार नहीं है। बड़े बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। बट यस, काफी पूरा काफी लर्निंग रहा हमारे लिए ये। तो सुमित जी, आर यू अवेलेबल अभी? क्योंकि ऑन किया था उन्होंने अपना वीडियो, तो जस्ट, तो उनका वीडियो तो ऑन लेट्स हुआ था। लेट्स गो अहेड रितु, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। ओके, चलो। I would like to thank heartfelt gratitude to all the esteemed guests for sharing their knowledge and expertise
during the engaging question and answer session also. Your insights and thoughtful responses have greatly enriched this webinar. I appreciate your valuable contribution and dedication to providing clarity on various topics. I will not take much of the time. Thank you, Sachin sir. Thank you, you, ma'am. Jen sir. And thank you. अरे सुमित सर आ गए हैं. मेरे को लगता है सुमित सर आ गए हैं. सुमित सर के इंट्रोडक्शन में मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगी. He is the founder of CASA and he is fellow member of ICAI having more than 18 years of experience. He, along with his team, always believe in grooming young CAs. आज हम जो सब इधर हैं, मेरे को लगता है सुमित सर की मेहनत और आशा जी के बोल सकते हैं कि हार्ड वर्क के हैं. सुमित जी, I'm just a team member. Sir, along with his team, always believe in grooming young CAs, sharing knowledge through regular webinars and seminars by expert faculties and various other activities for welfare of CA profession. सर मेरे को लगता है हमारा टाइम तो हो गया है, लेकिन 2 मिनट है शायद 6:30 के लिए. सुमित सर प्लीज दो शब्द आपकी तरफ से भी. थैंक यू सो मच. Ritu ji, can I speak? Yeah. Permitted. सर एक मिनट बस. बेटी सचिन जी, स्पेशल थैंक्स टू यू फॉर वंडरफुल डिस्कशन जो अभी आपने इनकम टैक्स नोटिस पे किया. सो ग्रेटफुल टू यू एज ऑलवेज and thanks for coordinating the today webinar, Ritu ji, as drafted by, Thank you so much. discussed by आशा जी, CM जैन पैनलिस्ट, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड स्पेशल वी आर प्लानिंग दिस सीरीज वीकली बेसिस, मंडे मंथन, एंड डिफरेंट टॉपिक विल बी कवर्ड ऑन वीकली बेसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और भी इशू है तो यू कैन सजेस्ट मी. Hemanji, PPT will be shared on this with this recording. So any other discussion you want, you can suggest me over phone. And apart from this, new topic ad hoc addition. Sachin ji, Jen sir क्या करें? Ad hoc addition in assessment order. Ad hoc assessment, okay. Ad hoc addition बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा, इस पर भी प्लान कर लेंगे. और इस पे रिसर्च कीजिए सभी लोग और अपने अपने व्यू रखिए कि एड हॉक एडिशन किस बेसिस पे की जा सकती है विदाउट रिजेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ एक्ट. टॉपिक अच्छा है. एड हॉक एडिशन जो आजकल हो भी रही है, कहीं ना कहीं इस पर डिस्कशन की जरूरत है. एक बार फिर से मीटिंग इस पे प्लान कर लेते हैं. जैन सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर आप इसमें लीड लीजिए, क्योंकि सीएम जैन इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं सर्च, सर्वे Yes. और असेसमेंट पे डील कर रहे हैं. तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्कशन को लीड करें नेक्स्ट प्रोग्राम में. एंड कोई और अगर सजेशन हो, कोई और टॉपिक हो तो प्लीज अपडेट कीजिएगा. विद दिस थैंक्स टू अदर पार्टिसिपेंट, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट कर गए. स्पेशल इन अब्सेंशिया सभी का धन्यवाद, और विशेषकर सचिन जी जो हमेशा इनकम टैक्स पे गाइड करते रहते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज, आई थिंक. थैंक यू सर. Thank you so much. मैडम. थैंक यू so एवरीवन. थैंक यू. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू.